Hello students, very good morning to all. I Deepika Saraswat and I welcome you in our lecture number 4 that is totally related with the working of HTTP, which is Hypertext Transmission Protocol. Students, it means we have covered up our 3 lectures almost. Uh, so here, before going to start with this lecture, I just want to do some conclusion about the previous lectures related with HTTP. Students, we have discussed 2 previous lectures that is related with HTTP. And in our first HTTP lecture, which is the HTTP part 1, and in this lecture, we have discussed about the basic components and the basic terminologies that we'll use in HTTP. And in the second part that related with HTTP part 2, in that lecture we have discussed uh, about some terminologies also and some architectures of HTTP with some internal configurations also. So we have discussed about so many things in our previous lectures, and I hope you all have learned these lectures and listen this very carefully. By taking the reference of previous lectures, now I'm going to start with our new lectures, but the topic is same, which is related with HTTP. So in this lecture, students, we'll start with the total working process of HTTP, that how HTTPs work and what can be the number of steps whenever any configuration or communication is going to proceed. So here we will discuss about some these things, whole the workability of the HTTP we will discuss in this lecture. So further we'll move and we take some outlines, that's very basic points for our video. So students, the outlines are the first one, which is the prerequisites of the topic. Now the next we'll continue with the objectives. Now the next we'll have some descriptions about the HTTP. So I have added basic descriptions from the previous lectures, which is how HTTP works. Some I have taken the basic components of the HTTP based system. Some I have taken here the HTTP flow. The next one is basic aspects of HTTP. Now the learning outcomes and references. Now students, if we start about the prerequisites. So prerequisites क्या हो सकते हैं? It can be a kind of basic knowledge about any topic. तो जब भी आप HTTP की वर्किंग की बात करेंगे, इट मीन्स यू शुड नो अबाउट बेसिक 2 lectures. सो यहाँ पर मैंने लेक्चर नंबर 2 एंड 3 को रेफर किया है फॉर अवर लेक्चर नंबर 4. So these 2 and 3 lecture both are related with HTTP part 1 and part 2. इन 2 lectures को अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है, सुना है, then you will be very much comfortable to study this one lecture. So if I talk about some basic prerequisites about this topic, so you should learn about the lecture number 2 and 3. Now next we'll further move to the objective. Objective क्या है इस topic का? So basically as a name indicate, because its name is a working of HTTP, तो जैसा इसका नाम है वही इसका ऑब्जेक्टिव है, that here we are going to discussion about the working process of HTTP. Because previous 2 lectures में अभी हमने HTTP का components and कॉन्फ़िगरेशन पार्ट समझा है कि HTTP बेसिकली किस तरीके से इनबिल्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है. Now in this lecture we'll discuss about the working process of HTTP. The next we'll move about the how HTTP works. कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट समझेंगे. वर्क करने से पहले तो हम समझेंगे कि दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड इन 2 programs. First program is related with client side and second one is the server side. तो client side और server side पे क्या क्या बातें होती हैं, ये सब हम इस HTTP में देखेंगे. So we can see that it's execute on different end systems and it's talk to each other by exchanging some messages.
सबसे पहले एक एंड सिस्टम एक इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें कि मैसेजेस हमको डेवलप करना है। तो अगर एंड सिस्टम की हम बात करें तो कोई भी सिस्टम जब इनिशिएट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक सम कनेक्शन विद द सर्वर्स। So firstly we will take a connection with the server. So its first step will be initiate connection with the server. सबसे पहले सर्वर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। जैसे ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल एक्टिव होगा? ऑलवेज कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट के लिए इट्स एक्टिवनेस ऑफ द टीसीपी प्रोटोकॉल। और जब भी टीसीपी प्रोटोकॉल एक्टिव होता है तो सबसे पहले उस ब्राउजर से कनेक्ट होता है जिसके थ्रू हमने कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। तो जब भी कोई कनेक्शन एक्टिव होता है तो सबसे पहले ब्राउजर का पार्ट होता है, उसके बाद वो सर्वर पे प्रोसेस्ड होता है। तो जैसे कि हमको लगता है कि कोई भी कनेक्शन हमने किया सो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन दी सर्वर। सर्वर से सारी चीजें डिपेंड नहीं है, सबसे पहले ब्राउजर्स पे डिपेंड है। तो हमको उस ब्राउजर पार्ट को एक्टिव करना है, देन वील एक्टिव मूव टू द सर्वर प्रोसेस। और उस प्रोसेस को एक्सेस करेंगे हम टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। और इस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं सॉकेट इंटरफेसिंग, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कुछ सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया था, वो चीजें यहाँ पर इस्टेब्लिश होती हैं। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें इसको तो हम ये देखेंगे कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल इट्स आल्सो अलाउ सम फैचिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स फैचिंग भी अलाउ करता है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंटेशन अलाउ करता है, हमने किसी रिसोर्स को इसमें अगर ऐड किया है तो ये डॉक्यूमेंटेशन अलाउ करता है। इट्स नेम इज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। यानी जितनी भी स्क्रिप्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है या एचटीएमएल बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इट विल कवर अप, इट विल फैच ऑल दीज रिसोर्सेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। That's why HTTP is a very much powerful protocols at this time for the communication, because एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेसिंग भी प्रोवाइड करता है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, चेंजेस हैं, वो सारी चीजें भी इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वेब ब्राउजर्स और वेब सर्वर पे जितनी भी एक्टिवली एप्लीकेशन लेयर पे जितनी भी टास्क एक्टिव होते हैं, दे ऑल डन विद द हेल्प ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल. So we can say it's a kind of foundation of any of the data exchange on the webs, and it's also provide a client server protocol as we have already discussed कि अगर communication create होगा so it's a very basic part to create any communication that it's need to establish a client server environment. So client server environment के through ही सारा काम चल रहा है। now next हम देखेंगे अगर हम वर्क कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल में, इसका मतलब क्या है? इट रिक्वेस्ट आर इनिशिएटेड बाय द रेसिपिएंट्स। तो रेसिपिएंट्स पे क्या रिक्वेस्ट आ रही है वो सारा भी चेक करता है। और इट यूजुअली द वेब ब्राउजर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर बोलते हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट आई है वो किसके थ्रू प्रोवाइड हो रही है? हमारी वेब ब्राउजर्स के थ्रू हो रही है। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसको कि हम डिफरेंट सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू फैच कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा, कोई डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, वीडियोस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, हम उन सारे डॉक्यूमेंट्स को फैच कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमको एक्टिव किसको करना है? वेब ब्राउजर्स को। उसी के अकॉर्डिंगली सारा काम चलेगा। नाउ नेक्स्ट हम एक छोटा सा लुक देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एचटीटीपी बेस्ड सिस्टम पर। क्या क्या कंपोनेंट्स है ये हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक पार्ट है इस कंपोनेंट का, विच इज एचटीटीपी, दैट बिकॉज इट्स प्रोवाइड अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कराता है क्लाइंट सर्वर का। तो जहाँ पर भी क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट मीन्स वहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की बात होती है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट दी जाती है उसके बाद ही हमको रिस्पॉन्स मिलता है। तो क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट देता है और सर्वर हमको रिस्पॉन्स देगा। ठीक, तो जैसे ही हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की बात की, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसी एक एंटिटी के थ्रू सेंड की जाएगी। तो उस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? यूजर एजेंट बोलते हैं। उस एंटिटी को हम यूजर एजेंट बोलते हैं, या फिर उसको हम कोई एक प्रॉक्सी भी बोल सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट यूजर एजेंट इज अ वेब ब्राउजर, बट इट कैन बी एनीथिंग। वो एक वेब ब्राउजर भी हो सकता है। तो वो जो प्रॉक्सी सर्वर है, वो प्रॉक्सी सर्वर भी किसके थ्रू चलेगा? किसी वेब ब्राउजर के थ्रू ही चलेगा। तो वो जो फर्स्ट जो रिक्वेस्ट सेंड की गई है, दैट्स डन विद द हेल्प ऑफ द वेब ब्राउजर। नाउ इसमें कि मैंने एग्जांपल डाला है, वेब ब्राउजर क्या हो सकता है? इट मे बी एनी रोबोट, इट मे बी एनी पर्सन दैट क्रॉस द वेब टू पॉपुलेट एंड मेंटेन अ सर्च इंजन इंडेक्सिंग। ये एक सिंपल से एग्जांपल है कि एक सर्च इंजन पे किस तरीके से काम हो रहा है, हम उसके एग्जांपल ले सकते हैं। And now here I have added a small configuration diagram here.
जो कि ये शो कर रहा है that these all are the components connection in HTTP. तो जब भी हम HTTP प्रोटोकॉल पे बात करते हैं तो डायरेक्टली हम क्लाइंट और सर्वर एनवायरनमेंट पर काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स क्या हो रहा है, इफ वी टोटली डिपेंड ऑन द इंटरनेट, then we can work with the client server environment, but sometimes some private arrangements and some private organizations has its own arrangements. तो वो अगर हमारे पास कुछ अपने खुद के अरेंजमेंट्स है, इट मे बी समटाइम्स क्या होता है कि कभी इट मे बी सर्वर डाउन हो रहा है या उसकी प्रॉपर रिचेबिलिटी नहीं है या उतनी एक्सेस नहीं हो पा रही है सर्वर के थ्रू डेटा, then we can also run our internet with the help of the intranet configuration. तो अगर हम अपने इंट्रानेट पे रन करते हैं, इट मीन्स हम प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू रन करेंगे, ना कि मेन सर्वर के थ्रू. तो इट मे बी कि समटाइम्स हम प्रॉक्सी सर्वर से कोई रिक्वेस्ट मिल रही है और कोई रिस्पॉन्स उसको दे रहे हैं, तो ये प्रॉक्सी सर्वर दोनों साइड में काम आता है, लाइक क्लाइंट साइड भी इट्स वर्क एंड सिमिलरली इट्स वर्क ऑन द सर्वर साइड्स. Now next, if we move to the working, how it works, so we can see that there are different individual requests that is sent to a server. एक server पे different request दी गई है, and that request will handle and it's provide an answer. जैसे हमने एक request दिया, सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को हैंडल किया, अगर सर्वर वहां अवेलेबल नहीं है, then it will request fulfill with the help of the proxy server also. So ultimately request will going to be fulfilled. तो fulfill जिसने भी किया है, so that acknowledge command is known as the response. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई रिक्वेस्ट गिवन है तो हमको इसका एक रिस्पॉन्स मिलेगा, तो पहली वर्किंग ये हो गई. नाउ बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर देयर आर नंबर ऑफ एंटिटीज, क्योंकि क्लाइंट सर्वर के बीच में बहुत सारी एंटिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी मशीन हो सकती हैं, देयर कैन बी नंबर ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स. So that entities known as the proxies, there can be number of proxies. So proxies ये बताती है that which perform different operation and it act as a gateways or caches. It means जो भी recently हमारा डाटा है या जिस पर भी हमारा वर्क चल रहा है, these all things are done with the cache memory. तो कैचेस के थ्रू पूरा डेटा मैनेज होता है, and that is done with the help of the gateways. Now next I'll start and I'll just continue this. अगर हम एक एग्जांपल लें, so in reality there are more computers between a browser and the server that handling the request. तो अगर हम एक एग्जांपल लें सर्वर ब्राउजर और सर्वर के बीच में, तो यहाँ बहुत सारी रिक्वेस्ट हैंडल की जाती हैं, और जब भी ये रिक्वेस्ट हैंडल होती हैं, it can be there are number of routers, modems and there are number of devices which will helpful to manage these requests. तो इन रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए इस ब्राउजर्स को मैनेज किया जाता है, एंड ब्राउजर और सर्वर के बीच में एक हैंडलिंग प्रोसेस डन की जाती है, जिसको कि हम रिक्वेस्ट बोलते हैं. Now next जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा फॉर HTTP वर्किंग, तो फर्स्ट कंपोनेंट इज नोन एज क्लाइंट. क्लाइंट जिसको कि हमने यूजर एजेंट भी बोला है. तो ये यूजर एजेंट क्या करता है, इट मे बी एनी काइंड ऑफ टूल दैट एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर. यूजर के बिहाफ में ये यूजर एजेंट काम करेगा, एक टूल है एक तरीके का, एंड दिस रोल इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय द वेब ब्राउजर. तो सबसे पहले जब हम वेब ब्राउजर के थ्रू काम करते हैं तभी ये टूल एक्टिव होता है, और इसका सबसे पहला रोल रहता है इट्स वर्क विद द वेब ब्राउजर्स. Now the other possibilities that are it's a kind of program that used by some developers, or we can say some engineers, to run the program and to debug the applications. तो जो भी एप्लीकेशन है उसमें अगर डिबगिंग प्रोसेस करनी है तो वो सेकंड टास्क वो करेगा. तो these all tasks are done with the help of the client and user agent. Now the third one, that browser is always the entity that initiating the request. तो हमेशा जब जो भी रिक्वेस्ट हमने दी है वो सारी ब्राउजर के थ्रू ही हैंडल की जाती है. नाउ द नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं इट्स नेवर द सर्वर, बिकॉज
There are some mechanisms that have been added over the years to simulate server initiated messages. तो ये एक तरीके से हम इसको सर्वर नहीं बोल सकते, बट एक ऐसी अप्रोच है जो भी डेटा हमारा रिक्वेस्ट किया है उन सारे डेटा को ये इनिशिएट करने का काम करता है. तो सबसे पहला इनिशिएट किया है क्लाइंट ने, जिसको कि हम बोलते हैं यूजर एजेंट. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज अवर वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या करेगा? दैट इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल एंड इट इज द सर्वर. तो जब भी हम कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे तो क्लाइंट के साथ ही कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, दैट इज वर्क ऑन दी अपोजिट साइड. तो ये अपोजिट साइड कम्युनिकेशन क्रिएट करता है. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, इट आल्सो सर्व द डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराता है, जो कि जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे क्लाइंट्स के थ्रू गिवन हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ये प्रोवाइड कराता है. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, सर्वर दैट अपीयर्स एज ओनली अ सिंगल मशीन वर्चुअली. एक सिंगल मशीन पर भी काम करता है, and that's why it's maybe actually be a collection of servers and that sharing the load balancing also. So ये बहुत important part है यहाँ पर load balancing का, कि वेब सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या कर रहा है. लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जितनी भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही हैं सर्वर मशीन पे, उन सारी रिक्वेस्ट को ये मैनेज करता है. तो नेटवर्क की लोड बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है यहाँ, सो दैट ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मेंटेन हो पाए. So this is the task of web server. Now next important part है proxy server का. तो proxies क्या क्या काम कर रही हैं? देखिए हमारे पास सर्वर भी है, एक क्लाइंट साइड भी है और हमारे पास एक सर्वर साइड भी है. बट इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो प्रॉक्सी सर्वर्स का भी रहता है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर तब यूज होते हैं जब हमको बार बार लोड बैलेंसिंग मेंटेन करनी है, या कैशिंग पे काम करना है, या फिल्टरिंग पे काम करना है, या किसने लॉग इन किया है, अभी कितने यूजर्स लॉग कर चुके हैं. अगर वो सारी हिस्ट्री हम देखेंगे तो सो दीज ऑल थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर. तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर जो पहला टास्क प्रोवाइड कराता है दैट इज द कैचिंग. कैचिंग में क्या होता होगा? इन दिस दैट कैच कैन बी पब्लिक और प्राइवेट हो सकता है, एंड इट्स जस्ट लाइक द ब्राउजर कैच. जो भी कैश सिस्टम है, कैश मेमोरी है, ये उसको प्रोवाइड कराता है. दैट अभी हमारे कैश में क्या रन हो रहा है बेसिकली, ये वो सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा. सेकंड ये फिल्टरिंग प्रोवाइड कराता है. इट्स जस्ट लाइक एन एंटीवायरस, स्कैन और पेरेंटल कंट्रोल्स देता है. यानी कि अभी हमारा कौन सा एंटीवायरस चल रहा है, क्या फिल्टरिंग हो रही है, ये वो सब प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट ये प्रोवाइड कराता है लोड बैलेंसिंग. इसका मतलब क्या है? लोड बैलेंसिंग यानी ये अलाउ करता है मल्टीपल सर्वर्स को टू सर्व द डिफरेंट रिक्वेस्ट पे क्या सर्वर मेंटेन हो रहे हैं, ये वो प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट ये प्रोवाइड कराता है एक ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन का मतलब ये कि अगर डिफरेंट रिसोर्सेज हमारे सिस्टम में आना चाहते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल प्रोवाइड कराएगा. अभी जो लाइक अगर प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हम किसी इंट्रानेट पे काम करते हैं, तो अगर इंटरनेट पे कोई अदर वन यूजर है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है, तो वो कैसे हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को एंटर कर सकता है. तो ये सारी चीजें हम प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू चेक कर सकते हैं. सेकेंडली हम लॉगिंग मेथड चेक कर सकते हैं, जिसमें कि अलाउ करता है जितने भी प्रीवियस आपकी इंफॉर्मेशन है उन सबको भी मैनेज करता है. नाउ हम देख सकते हैं सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एचटीटीपी. क्या वो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? बेसिक एस्पेक्ट्स ये हो सकते हैं कि एचटीटीपी अगर हम बात करें तो जनरली एक बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है एंड ह्यूमन रीडेबल प्रोटोकॉल है. सो इट्स वेरी मच सिंपल. एंड इसका जो हेडर है, अगर हम बात करें इंट्रोड्यूस अगर हुआ है एचटीटीपी 1.0, ये किसका वर्जन है? तो ये 1.0 जो है, इसका जितने भी हेडर हैं दैट मेक दिस प्रोटोकॉल इजी टू एक्सटेंड एंड एक्सपेरिमेंट. तो हम इसके थ्रू हम कितने भी डेटा इसमें एंटर करा सकते हैं और इजिली लोड बैलेंसिंग मेंटेन हो सकती है. सेकेंड, एचटीटीपी एक स्टेटलेस है. इट मींस देयर इज नो लिंक बिटवीन टू रिक्वेस्ट. दो रिक्वेस्ट के बीच में कोई लिंक नहीं है इसमें. सेकेंड है कि एक सेशन भी प्रोवाइड कराता है. एंड जितने भी हम ई कॉमर्स साइट्स की बात कर रहे हैं, जितनी भी ऑनलाइन साइट्स की बात करें, सभी में सेशन क्रिएशन का काम करता है. तो जो भी रिक्वेस्ट मेंटेन होती है उन सभी को ये मेंटेन करता है सेशन के टाइम पर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमको समझना है दैट इज एचटीटीपी फ्लो. किस तरीके से एचटीटीपी के थ्रू डाटा फ्लो होता है. तो अगर हम एक क्लाइंट है, तो
इट मीन्स अगर वो क्लाइंट कम्युनिकेट करना चाहता है सर्वर के साथ, सो आइदर इट्स द फाइनल सर्वर और कोई प्रॉक्सी भी हो सकता है। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे? सबसे पहले एक टीसीपी कनेक्शन ओपन होगा, उसके बाद इट सेंड एन एचटीटीपी मैसेज भेजा जाएगा, उसके बाद उस मैसेज को रीड किया जाएगा विद द बाय द सर्वर एंड इट्स क्लोज और रीयूज द कनेक्शन फॉर फर्दर रिक्वेस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट के लिए उसको क्लोज कर दिया जाएगा। नाउ अगर हम कुछ लर्निंग आउटकम्स की बात करें यहाँ पर कि क्या लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं, तो लर्निंग आउटकम्स में हम समझेंगे दैट एचटीटीपी इज टोटली फोकस ऑन दी एचटीटीपी वर्किंग एंड सम फ्लो। किस तरीके से वर्किंग हो रही है और कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, वो सारी चीजें हम इसमें समझने जा रहे हैं। सेकंड, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि एचटीटीपी के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो वो हमने समझे हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है वो भी हमने समझी है। उसके बाद ये एचटीटीपी क्या वर्केबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है वो उसको हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम सर्वर और प्रॉक्सी के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं तो वो किस टाइप का कनेक्शन है। हमको ये चेक करना होता है कि वो जो सर्वर है हमारा वो प्रॉक्सी सर्वर है या मेन सर्वर है, तो ये भी एक चीज चेक की जाती है। उसके बाद में चेक किया जाता है कि कौन कौन सी वर्किंग आप कर रहे हो, उसमें इधर किस टाइप का कनेक्शन है, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो या यूडीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली टास्क किए जाते हैं। तो ये जो प्रीवियस स्टेप हमने इसमें समझी हैं एचटीटीपी फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी स्टेप से हम समझ सकते हैं कि एचटीटीपी किस तरीके से वर्किंग करता है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें थोड़ा सा, तो हम ये देखेंगे कि इस पे सबसे बड़ा एस्टैब्लिशमेंट जो पार्ट अपना रोल कर रहा है वो है हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल। तो सबसे बड़ी बात ये समझने की, अगर सारा काम टीसीपी कर ही रहा है तो हमको एचटीटीपी की जरूरत क्यों पड़ी थी। एचटीटीपी की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा था। अब ये टीसीपी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे भी जा सकता था, बट हमको एप्लीकेशन लेयर पे ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए था जो कि सारे हाइपरटेक्स्ट मीडियम्स को फॉलो कर पाए। तो हाइपरटेक्स्ट मीडियम को फॉलो करने के लिए हमने टीसीपी को एचटीटीपी को यूज किया। तो एचटीटीपी को यूज करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर टीसीपी प्रोटोकॉल बहुत यूजेबल प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो भी वेब ब्राउजर से कनेक्टिविटी होती है, जो भी यूजिंग होती है, वो सब टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। और जितना भी हम मैसेज भेजते हैं वो सारा एचटीटीपी के थ्रू टास्क होता है। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें, मैसेज फॉर्मेट की, तो मैसेज फॉर्मेट एचटीटीपी के थ्रू जाता है, बाकी कनेक्शन टीसीपी के थ्रू रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का। सेकेंड, हमने इसमें देखा है कि इट रीड्स द रिस्पॉन्स दैट सेंड बाय द सर्वर। सर्वर ने जो भी रिस्पॉन्स सेंड किया उसको प्रॉपरली रीड करना है। जब अगर उस रिस्पॉन्स को वो नहीं समझेगा तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं किया जाएगा। तो रिस्पॉन्स को समझना भी बहुत जरूरी है, सो दैट कि अनदर रिक्वेस्ट को दिया जाए। क्योंकि जब तक सपोज वो रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आया, इट मीन्स जैसे मुझे जो वेब पेज ओपन करना था, अगर मेरे पास वो वेब पेज नहीं आया, वो साइट्स नहीं ओपन हुई है, इट मीन्स मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कुछ रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है। या अगर हम सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते हैं, मैंने कोई साइट ओपन किया और मैं उसे सर्च इंजन पे सर्च कर रही हूँ, बट वो डेटा मेरा ओपन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो सर्वर जो है वो मेरी रिक्वेस्ट प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब वो जो साइट के थ्रू जो मैंने काम किया है, तो वो जो साइट का जो एक्सटेंशन होगा www, उस इनिशियल के थ्रू ही आपकी एचटीटीपी सर्वर उसी इनिशियल को समझता है और उसके थ्रू ही वो उस पर्टिकुलर सर्च इंजन तक आपके डेटा को पहुंचाता है और वहां से अपनी डेटा को फैच किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो जिसपे कि हम बोल सकते हैं कि जो एचटीटीपी सर्वर है बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे कि हम वापस से कुछ लर्निंग आउटकम्स पर आए थे जिसमें कि एचटीटीपी की वर्किंग देखी थी और हमने उसका फ्लो देखा था। नाउ यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस है स्टूडेंट्स, प्रीवियस में भी मैंने ये रेफरेंस यूज किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। अभी अगर हम एट लास्ट इसको समझे तो अभी तक हमने एचटीटीपी के 3 वीडियो समझ लिए हैं, एचटीटीपी पार्ट 1, पार्ट 2 और सेकंड थर्ड वन इज वर्किंग ऑफ एचटीटीपी। तो इन 3 वीडियोस में हमने इजीली ये समझ पाया है कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल कितना प्रॉपरली काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो हमने काफी कुछ अभी एचटीटीपी के बारे में समझ लिया है।
नाउ नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम अब वेब सर्विसेज क्या है, वेब ब्राउजर्स क्या हैं, और सबसे बड़ी चीज हम उसमें समझेंगे जो हमारी वेब 2.0 सर्विस प्रोवाइड की गई है। वेब 2.0 सर्विस का मतलब ये है कि एक न्यू सर्विस इन्वेंट हुई थी, जिसका कि इन्वेंशन 20 सेंचुरी में हुआ था। जस्ट लाइक 2004 के आसपास ये इन्वेंट हुई है ये वेब सर्विस। तो ये वेब सर्विसेज क्या क्या काम कर रही है और क्या क्या फैसिलिटीज दे रही हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हमको क्या जरूरत पड़ रही है ये सारी चीजें समझने की। इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि जब भी हम वेब पेज डिजाइन करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो वेब पेज हमारा क्या क्या सर्विसेज हमको दे सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली हम वेब पेज डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमको वो वेब सर्विसेज पता होना चाहिए, देन वी कैन क्रिएट द वेब पेजेस। तो हमारी ये जो फर्स्ट यूनिट है ये पूरा वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड वेब सर्विसेज एंड एचटीटीपी पे डिपेंड है। जैसे ही हम सेकंड यूनिट पे आएंगे देन वी कैन वर्क विथ सम प्रैक्टिकल अप्रोच कि ये सारी डिजाइनिंग कैसे होती है। देन वी कैन मूव विथ HTML XML और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपके लिए इस प्रीवियस यूनिट को कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, सो दैट कि आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो पाए कि अभी हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस टॉपिक के लिए हमको क्या प्रिपरेशन करनी है। तो हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए उसको, और क्लास में उसमें प्रॉपरली अटेंटिव रहिए। तो आई थिंक अभी आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा और इससे रेलिवेंट जितनी भी लेक्चर्स है आप उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।